Hello, Yes, students. sir. Yes, sir. Am I audible to all of you? Yes, Good sir. evening. Good evening to all of you. Good evening, sir. Okay. I think today we're going to discuss the that is the 50 marks English. Na, you have 50 marks English. We're going to discuss on those topics. Okay. Okay, sir. You know the syllabus. You have the syllabus with you right now. No. Yes, sir. Okay. You just open the first. That is the poem. That is the poem. That is a tree. The name of the poem is Tree by Tina Morris. If you have the notes with you, just open it. Okay, so we will going to discuss the summary. Okay, we will just going. I am just trying to tell you the summary of the poem, The Tree, by Tina Morris. Okay, am I audible clearly to all of you? Na. So Yes, Tina sir. Morris. Okay, now Tina Morris is a very popular author. Okay, she was also a poet and activist. Okay, remember one thing. And the present poem Tree by Tina Morris is a very beautiful poem. It is short but sweet. In this beautiful poem, she talks about the significance and usefulness of trees in human life. Okay, I'm just telling you, narrating the summary of the poem, The Tree. Okay, Tina Morris, while writing this story, while writing this poem, she has only a perception in her mind that to make an aware just to make an awareness in the mind of the people, the utilization or the significance, or you can say the usefulness of tree in human life. Okay, according to the poet, if the trees are not taken care of, there will be no charm in human life. Definitely, if there is no tree in human life, if there is no tree, if there is no plant, if there is no such beautiful gardens available in the market, available in the surroundings of human life, then what will happen? The human life will be a meaningless life. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपको मन में ये सवाल आता है, सर मीनिंगलेस कैसे हो सकता है एक पेड़ पौधा गार्डन, ये सब मीनिंगलेस कैसे हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। आप कभी अगर दुबई जाओ, सऊदी अरब जाओ, अरब कंट्रीज जाओ जाओ और वहां जाके देखो, वहां पर जो स्टेटस है, वे ऑफ लिविंग है, पीपल कैसे रिसाइड करते हैं, तो आप देख के चौंक जाओगे। यहाँ पर कितने सारे सीजन है, विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन। ओके, बट वहां पर सिर्फ रेत, बालू और गर्मी, कैसे सरवाइव करते होंगे वहां पर? ओके, मीनिंग चार्मलेस, कोई इमोशंस नहीं है उस लाइफ में। ओनली द पीपल्स आर रनिंग आफ्टर मनी एंड मनी। ओके, अभी सऊदी अरब और दुबई जो गवर्नमेंट है, वो अभी क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल प्लांट्स जो है इम्प्लांट कर रहे हैं देयर। they are implanting nowadays an artificial plant, they are creating artificial water pools। तो देखो नेचर का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से टीना मॉरिस जब ये पोएम लिख रहा था, तभी उसने अवेयरनेस क्रिएट कर दिया था इन द माइंड्स ऑफ द ह्यूमन, इन द माइंड्स ऑफ द ह्यूमन, दैट प्लीज टेक केयर ऑफ द ह्यूमन, प्लीज टेक केयर ऑफ द ट्रीज, प्लीज टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। ओके, बिकॉज यही जो वास्तव में हमारे जीवन को रक्षा करेंगे, बाय सप्लाइंग more and more oxygen and by consuming कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसके लिए बता रहा है। और क्या बता रहा है? देयर विल बी नो विस्परिंग ऑफ लीव्स इफ द ट्रीज गेट ड्राई। वो अपना इमोशंस यहाँ पर शेयर कर रहा है कि अगर पेड़ पौधा नहीं होगा, तो वो जो एक चरमराहट होता है, सूखा पेड़ पौधे का जो एक चरमराहट होता है, पत्तों का एक जो आवाज होता है, इतना सुंदर जो आवाज होता है, वो फिर हमें कभी दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात को लेके वो अफसोस जता रहा है। The poem goes on to stress that without the existence of trees in human life will become colorless। अब जीवन में अगर किसी का पेड़ पौधा नहीं है, जीवन में आपके आस पड़ोस अगर पेड़ पौधा नहीं है, तो आप देखिए उस जीवन कैसा होता है, बिल्कुल मीनिंगलेस, कलरलेस होता है। हम जमशेदपुर शहर में रहते हैं। जमशेदपुर शहर जो है पूरा ग्रीनरीज है,
especially in the Bistupur area, especially in the Kadma areas where the people are staying, Sakchi's area, साक्षी की बात नहीं करो, कदमास एरिया, बिष्टुपुर एरिया, या फिर वो जो जुबली पार्क से एरिया जो वहां रहते हैं, कितना ग्रीनरीज है, कितना अच्छा लगता है। गर्मी के मौसम में आप उस पेड़ के अंदर से जब जाते हो तो कितना कूल सूदिंग लगता है लाइफ। लेकिन वहीं आप अगर ईस्टर्न रीजन में आ जाओ, थोड़ा सा बड़े शहर में आ जाओ, जैसे मुंबई, दिल्ली, या फिर ईस्टर्न रीजन कोलकाता, जहां पर बिग बिग फ्लैट्स, एवरी डे द लाइफ इज जस्ट लाइक अ मशीन। कोई भी आप गर्मी के मौसम में, चिलचिलाती गर्मी में मौसम में वहां थोड़ी सी भी राहत नहीं है, ऐसा जो शहर होता है, तो देखिए उस शहर में जो लाइफ होता है वो बिल्कुल कलरलेस लाइफ होता है। लाइफ का कुछ भी मीनिंग्स वहां से नहीं निकलता है। इसलिए ट्रीज का महत्व टीना मोरिस ने यहाँ पर हमें बताया है। The poet is of view that an artificial tree is not matched to the real one. यहाँ पर टीना मॉरिस एक लाइन और इम्प्लीमेंट यूटिलाइज कर रहा है कि बहुत जगह क्या होता है, घर में आर्टिफिशियल प्लांट्स, आर्टिफिशियल फूल हम लोग घर में लगाते हैं, या फिर सजावट के लिए हम लोग वो करते हैं। लेकिन फिर क्या लगता है, कैसा लगता है, कुछ दिनों बाद जब उसमें गंदे, मतलब कुछ रस्ट पड़ जाते हैं, कुछ डस्ट पड़ जाते हैं, फिर हम साबुन शैम्पू से धो के फिर उसे नीट एंड क्लीन करके रखते हैं, धीरे धीरे उस प्लांट का कलर फेड हो जाता है। तो क्या वो टेस्ट हमें मिलता है जो कि एक रियल लाइफ प्लांट में जो होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये प्लास्टिक वाला जो हम लोग घर में लगाते हैं, उसका क्या कोई महत्व है? इज दिस अ वे? तो टीना मॉरिस ने ये सारा कुछ हमसे सवाल कर रहा है कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए और कोशिश कीजिए कि ट्रीज को, प्लांट्स को, गार्डन को जितना ज्यादा हो सके बचाया जा सके, क्योंकि इन फ्यूचर हमें यही लाइफ को हम सरवाइव कर पाएंगे। अगर इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है तो वहां लाइफ का कोई अस्तित्व रहेगा ही नहीं। द पोएट होल्ड ए मिरर बिफोर द रीडर्स आई। देखो जो मैंने बता रहा हूं वहीं पर लिखा हुआ है, द पोएट होल्ड अ मिरर बिफोर रीडर्स आई। जो ये पढ़ेगा पोएट, उसके समक्ष, उसके नजदीक पोएट एक मिरर की तरह सब कुछ स्पष्ट रूप से बता रहा है कि ट्रीज का महत्व क्या है। थ्रू दिस पोएम टीना मॉरिस compel the present generation realize that the world would be barren and meaningless without tree. In short, this poem transmit the message of conversation of tree. छोटा संक्षिप्त में ये जो ट्री है, ये हमें बता रहा है कि जैसे जल जीवन है, उसी तरह से ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जो फूल होते हैं, बगीचा होता है, ये भी हमारे लिए एक जीवन है। हमें इसे संजोग कर, सजा कर रखना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग खड़े कर रहे हैं इसको डिस्ट्रॉय करके। एक दिन ऐसा समय आएगा कि यही प्रकृति, यही जो नेचर है, हमें फिर डिस्ट्रॉय कर देगा। आप इसका मिसाल देख रहे हो, एवरीवेयर देयर इज एन अर्थक्वेक, समटाइम्स देयर इज एन द वेदर आर नॉट कमिंग इन अ राइट टाइम्स। जब अभी देखो दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना गिर गया है, लेकिन ठंड उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का पहले होता था। ओके, अभी नवंबर तक गर्मी चलता है, तो देखो कैसे 360 डिग्रीज नेचर घूम जा रहा है धीरे धीरे, और यही सब डिस्ट्रक्शन का कारण होगा। ठीक है, तो यही संदेश हमें इस पोएम के माध्यम से जो राइटर है या फिर जो पोएट है वो हमें बता रहा है। इज इट क्लियर टू यू द टीना मॉरिस का जो पोएम है ट्री? ये समरी समझ में आया है? पोएम समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir, nahi. If you have any doubt, please tell me, okay? Because these are the things you will going to get in at the time of your examination. Questions कैसा आएगा? Write down the summary of the poem The Tree. या फिर कैसा क्वेश्चन Okay. आएगा? What is the main criteria of the poem The Tree? What is the main criteria of the poem? What is the message by Tina Morris given through his poem, through her poem The Tree? इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आंसर आपको लिखने को मिलेगा। सो बी केयरफुल, ओके? मैंने ये नोट्स शायद मैम को मैंने ये नोट्स दे दिया है। आप लोग अगर नहीं मिला है आपको तो आप मैम से रिक्वेस्ट कीजिएगा, डेफिनेटली शी विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द नोट्स, ओके? द नेक्स्ट पोएम, कम टू द नेक्स्ट पोएम, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय नसीम इस्केल। द नसीम इस्केल जो है वो इस पोएम का ये भी एक पोएम है
नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कैसा होता है? एक परिवार में, मैं थोड़ा सा जिस्ट आपको बता देता हूँ, एक परिवार में माँ का रोल कितना बड़ा होता है, माँ का कितना बड़ा बलिदान होता है अपनों बच्चों के ऊपर, ये पोएम हमें ये बताता है। देखो मैं इसको रीड करता हूं, यू जस्ट लिसन। नसीम इसाकिल वाज एन इंडियन जूइश पोएट, ओके, एक्टर, प्लेराइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक। ठीक है, ये तो आप पढ़ ही लोगे कैसे। नजीम इसाकिल, नजीम कौन था? वो एक बेहतर एक्टर था, ही इज अ बेटर प्ले राइटर, ही इज अ ग्रेट एडिटर, ही इज एन आर्ट क्रिटिक्स, ओके, and he has a means what you can say, he has a modern technique, he has a modern technique and new creativity and new innovations of writing poem। उनके पास वो तजुर्बा है, नया टेक्निक है कि वो नए नए वर्ड्स को यूटिलाइजेशंस करके नया कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन शोज द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर हु इज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन। एक रात, मैं थोड़ा सा कहानी आपको बताता हूं इस पोएम का। एक रात ऐसा हुआ कि मतलब अंधेरा रात था, तो जैसे घर परिवार में सब काम खत्म करके सोने का टाइम वक्त आ रहा था, तो सब जैसे सोने के लिए जा रहा था, तो किसी को पता नहीं था घर में एक स्कॉर्पियन में बिच्छू, ब्लैक बिच्छू आ गया था, किसी को पता नहीं था। तो लेकिन माँ ने उसे देखा, उस फैमिली में जो माँ थी, उसने वो देखा। उसने जब देखा कि मेरे बच्चों को काटने के लिए जा रहा है, वो तुरंत अपने बच्चों को प्रोटेक्शन करने के लिए अपना लाइफ को बलिदान कर देता है। और उसने क्या करता है, उस बचाने के लिए वो जो चोट करने वाला था, बिच्छू ने डंक मारने वाला था, वो डंक अपने ऊपर ले ली थी। ठीक है, और जिसकी वजह से वो बहुत पेन होता है, तकलीफ देता है, और हालत बहुत सीरियस हो जाता है। एवरी फैमिली मेंबर्स इन द फैमिली वेर क्राइंग फॉर देयर मदर, even her husband were also means even her husband are also willing for her wife, because at that particular time there is no such medicines or there is no such doctors available in the village. Okay, that's why everybody was little bit, not little bit, everybody was been depressed, okay, about the situation of their mother. So once every members in the household started to get shouting, वो हर एक घर में जो जितने भी मेंबर्स थे वो चिल्ला रहे थे, they were shouting for their lives of their mother। suddenly many of the villages, तो आपको जानता है थोड़ा सा चिल्लम चिल्ली होता है तो सब कोई आ जाता है, तो उस अड़ोस पड़ोस में जितने भी नेबर्स थे वो सब दौड़ के आगे, और सब कोई अपना अपना नुस्खा बता रहे थे। किसी ने बता रहा है कि तारपीन तेल डाल दो, किसी ने बता रहा था केरोसिन ऑयल डाल दो, किसी ने बता रहा था ये कर दो वो कर दो। और जब तक सुबह हुई, by the cross of the great, by the grace of the god, their mothers survive, और वो माँ बच जाती है। तो ये कहानी है, और इस कहानी को एक सुंदर पोएम के रूप में लिखा गया है। ठीक है, समझ में आया? पोएम समझ में आया? मैं पढ़ के आप लोगों को बताता हूं। The Night of the Scorpion shows the selfless love of a mother who is stung by a scorpion. Okay, डंक मार, स्टंग का मतलब डंक मार देना। The poem begins with the poet recalling his childhood and how his mother was stung by a scorpion one night। एक रात में जब सब कोई खाना वाना खा के सोने के लिए जा रहा था, तब कैसे उस रात में एक बिच्छू आकर डंक मार दिया था, ये थोड़ा सा पोएम के रूप में नजीम ने लिखा है कि लुक एट द सैक्रिफाइस ऑफ द मदर्स। ओके, द स्कॉर्पियन वाज टेकन रेफ्यूजी बिहाइंड द सैक ऑफ राइस। स्कॉर्पियन कहाँ छुपा हुआ था? एक मतलब धान के बोरे में, एक चावल के बोरी के पीछे वो छुपा हुआ था। आफ्टर 10 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप रेन, 10 घंटे से उस गांव में बारिश हो रहा था, तो उस स्कॉर्पियन ने उस बिच्छू ने इस घर में आश्रय ले लिया था, और जाके वो जो चावल की बोरी थी उस कोने में जाके वो छुप गया था। The scorpion inflicted horrific pain on the mother with a flash of a diabolic tail before returning to the rain।
और सब कोई भगाने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही वो सब कोई कोशिश कर रहा था तो अचानक से उसने वो जो डायबोलिक का मतलब क्या होता है, स्कॉर्पियन आप देखे हो कि उसका जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है, टेल पोर्शन इज अ राउंड एंड बेंट पोर्शन, और उसका जो एंड ऑफ द टेल होता है वहां पर वो जो स्टिंग रहता है एंड दैट इज वेरी पेनफुल, और वहां पर पॉइजन रहता है। तो जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, सब कोई भगा रहा था, उसने मदर को, उस परिवार में जो माँ थी उसको वो उसने डंक मार दिया। ओके, दे बिलीव, अच्छा, दे नाउ non-stop. The scorpion horrific pain on the mother with a flash of diabolic tail before returning to the rain. Now, the surrounding peasants arrived in a great numbers, singing and crying torches and lamp. जैसे ही चिल्लम चिल्ली हो रहा था घर में, everybody was shouting for their mother, everybody was crying for their mother. Suddenly, the villagers who are not very far from that particular house, everybody ran and came down to that house, like carrying torchlight, carrying lamps. Okay, and they came here to support the family. They sang God's name in order to paralyze the evil one and stop Scorpion from moving. और सब ने कुछ प्रेयर कर रहा था, कुछ मंत्र फूक, झाड़ू फूका या फिर झाड़ फूक कर रहा था, ताकि वो स्कॉर्पियन को जो डंक है, वो जहर जो है वो पूरे शरीर में ना फैले। ठीक है, दे बिलीव दैट द poison would move in mother's blood with every movement of the scorpion. They wanted to kill it but they couldn't find it. सब कोई चाह रहा था कि भगवान ना करे वो जहर पूरा शरीर में फैल जाए, अगर पूरा शरीर में फैल जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ अनहोनी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सब कोई बिच्छू को खोज रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिच्छू मिला ही नहीं। फिर क्या हुआ, द सराउंडिंग पीजेंट्स, पीजेंट किसे कहते हैं, पीजेंट गांव वाले को कहते हैं, देहाती, द पर्सन हु इज रिमेनिंग रिसाइडिंग इन द विलेजेस, जो एजुकेटेड नहीं होता है, क्वालिफाइड नहीं होता है, उसे पीजेंट कहते हैं, गांवठन, arrived in a great number singing. They believed that the poison would move in mother's blood with every movement of the scorpion. They wanted to kill it, but they couldn't find it. They opened the bundle of their superstitions to console their mother. सब कोई जादू टोना ये सब करने के लिए लगा, and assured her mother that her previous birth sins would be burned away by her agony and pain. In anguish, mother twisted and groaned, और माँ की हालत बहुत खराब थी, वो मतलब दर्द से तड़प रही थी। ठीक है, the villagers were superstitious but her husband was a rationalist and his belief were founded on logic, and the reason he tried every powder mixture and herb before finally pouring a little paraffin on the beaten toe and lighting a match to it. उसके बाद ये सब जो अंधविश्वास थे, गांव वाले मैक्सिमम अंधविश्वास होते हैं, तो उसने जादू टोना झाड़ फूक ये सब करने के लिए कहा, लेकिन उस परिवार में जो इसका हस्बैंड था वो बहुत रैशनलिस्ट था। रैशनलिस्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हु डजंट बिलीव इन सुपरस्टिशन, ये सब बिलीव नहीं करता था। उसने तुरंत क्या किया, बहुत सारा मिक्सचर, हर्ब, हल्दी, ये सब कुछ उस पैर जहां पर बिच्छू ने डंक मारा था वहां पर उसने प्रयोग किया। उसके बाद फाइनली उसने क्या किया, पैराफिन ऑयल मतलब केरोसिन ऑयल को वहां डाल के जहर ना फैले और थोड़ा सा आग लगा जला दिया। तो इससे क्या हुआ, क्या जहर जो है वो जल गया और वो सारा बॉडी में फैल नहीं पाया। Okay, the poet observed the flame consuming her mother as well as the holy man conducting his rites in an attempt to counteract an effective poison with the words prayer and magic. The sting was gone after 20 hours. 20 घंटे लगा उस जहर को निकालने में। The poison was significantly weakened and the mother recovered. She had forgotten all her suffering. She thanked God for showing mercy and was grateful that the scorpion had spared her children. धीरे धीरे वो जहर खत्म हो गया, उसमें उसको होश आ गया और उसने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान आपने सबको रक्षा किया, मेरे बच्चों को बचा लिया और मुझे भी बचा लिया। ये है पोएम द स्कॉर्पियन नाइट बाय नसीम इज़ाकिल। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सर। ओके Yes, sir. ओके, आप लोग बीच बीच में कुछ बोलिए या फिर माइक ऑफ करके आप लोग सिर्फ मतलब सुन रहे हो। कभी कभी कुछ डाउट्स वगैरह कुछ पूछना चाहिए, बिकॉज ओके यू नीड टू आस्क। नेक्स्ट कम टू रामानुजन बाय टीपी स्नो। यू नो श्रीनिवासन रामानुजन कौन था? यू नो ही इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन।
आई थिंक यू नो ना रामानुजम कौन था? ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन जो कि 22 दिसंबर 1887 को बॉर्न हुआ था. ही वॉज अ ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन हु इज फॉर हु इज. अब रामानुजम के बारे में एक सबसे अनोखी चीज ये है, ही डजंट हैज अ हैड अ फॉर्मल ट्रेनिंग. उसमें कोई मैथमेटिकल का फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं किया गया था. उसने भी जितने भी मैथमेटिक्स सीखा था, हिसाब करना, पहाड़ा मतलब टेबल्स याद करना, सब्ट्रैक्शन एडिशन, ये सब कुछ करना, ही लर्न फ्रॉम हिज मदर. ओके, हिज मदर वाज अ फर्स्ट टीचर to make him learn about the make him learn and the rules of mathematics. And by the it's all about the grace of God. भगवान की कुछ उसमें पावर थी, शक्ति थी कि वो बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशंस जो था वो चुटकियों में से सॉल्व कर देता था. तो जब उसने स्कूल में उसका जब एडमिशन हुआ, द टीचर वाज सरप्राइज्ड दैट Ramanujam, with a so small in age, how can he calculated such a big sum? Thousands का calculations वो चुटकियों में कर देता था. Even the teachers used to get surprised the power and brain of Ramanujam. ठीक है, ये स्टोरी उसी पे बेस्ड है. ओके, he was an extraordinary contributions to mathematics. उनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा योगदान था. एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शन. उसने अपने लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, जिसने ऐसा है कि मैथमेटिक्स का कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है जिसका कोई सॉल्यूशंस नहीं था. सर रामानुजम ने इस सारे थ्योरीज को, इस सारे कंसेप्ट्स को उसने सॉल्व किया और प्रूफ करके बताया, यस दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी सॉल्व्ड थ्रू मैथमेटिक्स, थ्रू प्रॉपर कैलकुलेशंस. ठीक है, उसने प्योर एल्जेब्रा, सब्सट्रैक्शन, प्योर एल्जेब्रा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल एनालिसिस, इसके ऊपर उन्होंने महारत हासिल किया. ठीक है, इसके ऊपर उसका सबसे अच्छा कमांड था. ओके, he has a much more command on mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fractions. उस जमाने में ये जो प्रॉब्लम्स था, ये सब जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स था, दिस इज वेरी हार्ड टू कैलकुलेट. Okay, lots of mathematicians are there who couldn't find the proper solution of these problems, but only Ramanujam, the great Indian mathematicians from India, solved these problems. Okay, Ramanujan developed his own mathematical research in isolations. Ramanujam was so much means devoted toward the mathematician that he always remained in isolation place. वो कुछ निर्जन स्थान में चला जाता था, निर्जन प्लेस में चला जाता, एकांत स्थान में चला जाता था और बैठ के मैथमेटिक्स सॉल्व करता था. As a as a result, he rediscovered known theorems in addition to producing new work. और धीरे धीरे जैसे ही वो ग्रोन अप होने लगा, उसमें नया थ्योरीज, नया मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस, नया फॉर्मूलाज उसने इजाद करने लगा. ठीक है, और इसका प्रैक्टिस करने लगा. एज ए अच्छा, उसके बाद है रामानुजम वाज सेड टू बी अ नेचुरल जीनियस. नेचुरल जीनियस किसके कहते हैं? गॉड गिफ्टेड. ठीक है, गॉड गिफ्टेड. जैसे फॉर एग्जांपल किशोर कुमार. you know everyone that who is a Kishore Kumar. He is a great singer, he is a great producer, he is a great actor and also a great director. But you will surprised to know that Kishore Kumar was a great singer, but he doesn't take any classes, but he doesn't have any teachers for the singing. उसको कोई तालीम नहीं मिला था किशोर कुमार को गाना वाना सीखने के लिए, गाना बजाने के लिए. उसको कोई मतलब उसका कोई टीचर नहीं था. He was just listening the song of Sehgal, प्रोफेसर सहगल. उसने सहगल का कुछ गाना सुनता था, उसे गुनगुनाने लगता था. तो ये सब जो कुछ कुछ ऐसे जो प्रतिभाएं होती है ना, टैलेंटेड होता है ना, दिस ऑल आर गॉड गिफ्टेड टैलेंट. ओके, वो
लेके ही जन्म, मतलब कोई भी जो छोटा बच्चा होता है उसे गॉड गिफ्टेड जो होता है वो जन्म से पहले ही उसे मिल जाता है। तो रामानुजम इज वन ऑफ देम। ठीक है, वो भी एक नेचुरल टैलेंटेड इंसान था, मैथमेटिशियन था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नेचुरल जीनियस मैथमेटिक्स, जी एच हार्डी। जी एच हार्डी कौन था? जी एच हार्डी इज ऑल्सो अ was also a renowned mathematicians in that era. जी एच हार्डी भी बहुत नेम एंड फेम मैथमेटिशियंस था उस एरा में। जी एच हार्डी इन द सेम लीग एज मैथमेटिशियंस such as Eluser, Gaussy. Ramanujan was born in Erode, मद्रास प्रेसिडेंसी, नाउ इन तमिलनाडु। रामानुजम का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ बता रहा है, इन तमिल ब्राह्मण फैमिली ऑफ अयंगर सेक्शन। His introductions to formal mathematician began at the age of 10। 10 साल की उम्र में उसे मैथमेटिशियंस का ट्रेनिंग मिला था। ट्रेनिंग नहीं मिला था, इंट्रोडक्शंस करवाया गया था थ्रू हिज मदर। He demonstrated a natural ability and was given books on advanced trigonometry written by S. L. Loney। 10 साल की उम्र में उसने बहुत सारे ऐसा जटिल, मतलब थोड़ा सा व्हाट यू कैन से पजल्ड क्वेश्चंस जो था मैथमेटिक्स का, जिसे सॉल्व करना थोड़ा सा नामुमकिन था, वो सॉल्व कर देता था। He was such a genius. He demonstrated a natural ability and was given a books on advanced trigonometry written by S. L. Loney। एस एल लोनी उस जमाने में सबसे रिनाउंड मैथमेटिशियंस था और उसने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर रिसर्च किया था। उस रिसर्च के बुक्स को रामानुजम को दिया गया था। दैट ही मास्टर्ड एट द एज ऑफ 12। जिसने वो रिसर्च करके 12 साल, मतलब उसको रिसर्च करने में लगा। 12 साल की उम्र में रामानुजम ने उस किताब को पूरा पढ़ लिया। सच ए जीनियस ही वाज। ही इवन discovered theorem of his own and rediscovered Euler's identity independently। उस किताब को पढ़ा, उस किताब के माध्यम से नया फॉर्मूलाज, नया मतलब क्या, नया कैलकुलेशंस उसने मतलब लिखा, और उसने ये साबित कर दिया कि अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थ्योरम दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। He is such a genius. Okay. By 17, Ramanujam has conducted his own mathematical research on Bernoulli numbers। 17 साल की उम्र में उसने रिसर्च स्टार्ट कर दिया था, और बर्नौली नंबर जो होता है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, उस पे इसने रिसर्च किया। Okay, and the earlier Mesoceres constant in 1912-13, he was sent sample of his theorem in 3 academics at the University of Cambridge। 1912-1913 में उसने जो भी कैलकुलेशंस किया था बर्नोल्स के ऊपर, उस कैलकुलेशंस को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया कैम्ब्रिज में भेजा गया था फॉर चेकिंग, फॉर एनी माने फॉर एनी or for any checkings, for any rectifications, whatever। G.H. Hardy recognizing the brilliance of his work। उस जमाने में G.H. Hardy one of the renowned mathematicians था। उसने जब ये सब थ्योरम पढ़ा रामानुजम का लिखा हुआ, तो उसने मतलब ब्रिलियंट, मतलब वो हक्का बक्का रह गया कि इतना कम उम्र में इतना ब्रेन कैसे हो सकता है, जो कैलकुलेशंस कैसे कर सकता है। एंड देन he was invited Ramanujan to visit his own town with him at a Cambridge। और उसने रामानुजम को बुलाया, G.H. हार्डी ने रामानुजम को बुलाया कैम्ब्रिज में कि प्लीज आप आइए, मुझे आपसे मिलना है, आई वांट टू मीट विथ यू। ही बिकम अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी फाइनली एंड फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज। रॉयल सोसाइटी और फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर बन गए थे रामानुजम। कुछ साल तक वहां पर पढ़ाई उन्होंने करवाया, पढ़ाई किया, पढ़ाया स्टूडेंट्स को ट्रिनिटी कॉलेज में कैम्ब्रिज। रामानुजम डाइड ऑफ इलनेस, माल न्यूट्रिशन and possibly liver infection in 1920 at the age of 32 he was died। एकदम कम उम्र में, 32 साल की उम्र में लिवर इन्फेक्शन की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। Okay, in recognition of his contribution to mathematics, the government of India declared that Ramanujam birthday 22nd December should be celebrated as a national mathematics day। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज भी 22 दिसंबर को मैथमेटिकल डे
नेशनल मैथमेटिकल डे करके सेलिब्रेट करते हैं। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरला में, मैक्सिमम पार्ट ऑफ साउथ एरियाज में जो है वहां पर रामानुजम्स बर्थडे एज अ नेशनल मैथमेटिशियन डे करके सेलिब्रेट होता है। ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड 2012 द नेशनल मैथमेटिक्स ईयर। 2012 साल जब पीएम हमारे मनमोहन सिंह जी थे, उसने इस दिन को नेशनल मैथमेटिक्स ईयर में के लिए एक घोषणा कर दी थी कि इन दिस ईयर एवरी ईयर 22 दिसंबर वी विल गोइंग टू सेलिब्रेट दीज डे एज अ नेशनल मैथमेटिशियन और मैथमेटिकल डे, that is on behalf of Sir Ramanujam. This is the story of Ramanujam written by C.P. Snow. Am I clear? The students who are listening to me, is it clear to you? I have already completed the three. If you still have any doubt, please you can ask me. कोई डाउट है? No, sir. नहीं? No, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है? Is it clear to you? The Yes, voice is sir. okay. कोई voice break तो नहीं हो रहा है? Clear है? जी सर। Yes, sir. ओके ओके, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला जो है जॉर्ज ऑरवेल्स व्हाट इज साइंस, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। दिस टॉपिक इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। इट्स नॉट इट्स अ सिंपल स्टोरी, you cannot say it as a story, it's not a story, इसमें कोई कहानी तो फिलहाल है नहीं, but it is something like a paragraph, okay, it's just a paragraph, or it's just a theory, you can say it's just a theory where George Orwell he was an, you can say George Orwell is always working on the science, okay, George Orwell एक लिटरेचर के लेखक है, साइड बाय साइड उसने साइंस के इन्वेंशंस पर, साइंस के न्यू इन्वेंशंस पर उन्होंने बहुत कुछ अपना थ्योरीज, अपना पॉइंट रखा है। उसमें से एक है व्हाट इज साइंस, साइंस का डेफिनेशन क्या है। जॉर्ज ऑरवेल वांट टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ साइंस, और यही टॉपिक है, ठीक है, यही चैप्टर है व्हाट इज साइंस, रिटन जॉर्ज। देखो पूछ क्या रहा है वो, साइंस क्या है। इट इज एड्रेस्ड एंड रिबूटल टू अ स्टेटमेंट बाय M.J. Stewart Cook. Cook believed that all people should be scientifically educated and scientists being brought out of isolations to participate in politics and economics. Okay, Orwell begins to agree with the statement. However, he immediately goes into the main focus of his essay, what defines science. तो साइंस का जो डेफिनेशन M.J. स्टीवर्ट कुक ने बताया है, उस जवाब से जॉर्ज ऑरवेल इज नॉट हैप्पी। साइंस कैन नॉट बी स्टिक टू एनी पर्टिकुलर पर्सन। अकॉर्डिंग टू Mr. J. Stewart Cook, science can only be read by the scientist. ये बता रहा है, सिर्फ जे स्टीवर्ट कुक ये बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ साइंस जो साइंटिस्ट वाले हैं वही पढ़ सकते हैं, बाकी कहीं साइंस की जरूरत है नहीं, कोई इसे नहीं पढ़ सकता है। इसी बात को खंडन किया है जॉर्ज ऑरवेल ने। जॉर्ज ऑरवेल ने क्या बताया, ऑरवेल बिगिंस टू एग्री विद द स्टेटमेंट, हाउएवर ही इमीडिएटली गोज इनटू द मेन फोकस ऑफ हिज एसे, व्हाट डिफाइंस साइंस। कुछ हद तक जॉर्ज ऑरवेल ने इस चीज को डिफाइन किया था, इस चीज को पसंद किया था, बट फाइनली उसने लेटर पार्ट को रिजेक्ट कर दिया था कि साइंस कैनॉट बी स्टिक टू एनी पर्टिकुलर पर्सन। साइंस कोई पर्टिकुलर रिलीजियन, पर्टिकुलर पर्सन के इख्तियार में नहीं है, साइंस एक बहुत बड़ा चीज है। ओके, एवरी डे, ये चीज बाद में आएगा, मैं पहले आपको बताता हूँ। एवरीवेयर फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, फ्रॉम आप जब से जग रहे हो और जब आप रात को सोने के लिए जा रहे हो, देखिए हर जगह साइंस की नेसेसरी इंपॉर्टेंस है। ओके, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस विथ यू, यू आर लिसनिंग टू मी, इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ साइंस। ओके, माई वॉइस इज ग्रोइंग through mobile connections, okay, your data are on. So what is this? These all are the invention of a science. Okay, the places where you are residing, the books you are reading,
the food you are eating, the dresses you are wearing, we are wearing, this all are related to science. थोड़ा सा हद कर सोच के देखो इस सब चीज में साइंस है। और जॉर्ज ऑरवेल ने इसी बात को प्रूव किया है that every day we need science, every human being is a part of science. Science cannot be stick to any particular person, science cannot be stick to any particular definition. साइंस का कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेफिनेशन होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद बता रहा है, ही पॉइंट्स आउट दैट इट इज नॉट अ केस दैट साइंस एनकम्पासेस मेनी सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ये साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये साइंस नहीं है। According to him, he point out that it is not a case and that science encompasses many subjects. Not one looks like a poet says he is a scientist. Orwell continues to poke and what describe a scientist by prescribing a test withstanding nationalism. He states science are supposed to be international and should have not have any borders. ठीक है, तो यहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल ने वो सारा पॉइंट्स को डिनाई कर दिया है जो पॉइंट्स पहले जो साइंटिस्ट थे या पहले जो राइटर थे उसने साइंस का डेफिनेशन अलग बताया था। उसने बताया था साइंस एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, यही साइंस का पूरा मतलब है। मतलब साइंस वही चीज है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। और ये भी बताया था साइंस और सिर्फ द पर्सन हु इज साइंटिस्ट और द पर्सन हु इज अ स्टूडेंट ऑफ अ साइंस or reading taking the subject as a science, they only have the authority to read the science. लेकिन जॉर्ज ऑरवेल ने ये पूरे बात को नकार दिया था और उसने कहा था जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, whether it is physics, chemistry or mathematics, every day there is a physics, chemistry and mathematics subject we are having in our life. खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, सोने से पहले, सोने के बाद, देखिए हर एक मूवमेंट में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का इक्वेशन, कैलकुलेशंस मिलता है। Am I clear? That is why here George Orwell describes science not stick to physics, chemistry and mathematics, लेकिन साइंस वो है कि एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक सब्जेक्ट है जहां पर हर एक इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ इट। ये है पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ अ साइंस। ठीक है, यही जॉर्ज ऑरवेल ने इस स्टोरीज के माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से समझाया है। उसके बाद furthermore Orwell state that scientific education should provide method of solving problem, not just fact or single minded thinking. और ये भी जॉर्ज ऑरवेल ने बताया है कि साइंस अगर पढ़ना है स्टूडेंट को तो ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। ठीक है, ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, ये नहीं कि शॉर्ट माइंड होना चाहिए। नैरो माइंडेड के जो इंसान होते हैं वो साइंस को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे आज भी देखिएगा थोड़ा सा हेट्रेड होता है। आप अगर कॉलेज में जब जाओगे तो व्हाट इज द स्ट्रीम, द समवन इज आस्किंग यू एंड इफ यू से आई एम फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम, आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, they they never accept that subject as a in a what you can say in a respect way. They never give that respect to this particular subject, art, commerce and all. But if you say that I am from science, I am doing master in science, MSc in physics, MSc in mathematics, they really feel, some people really feel happy. Oh my God, this is a very, he is a very intelligent person. Look at his qualification, he is MSc in physics. लगता है तो यही जॉर्ज ऑरवेल बता रहा है कि आप ना इस बाउंड्रीज को क्रिएट मत कीजिए। जो इंसान आर्ट्स लेके पढ़ रहा है या कॉमर्स लेके पढ़ रहा है उसका भी उतना हक है, वो भी साइंस के पार्ट है जितना जो एमएससी फिजिक्स या मैथमेटिक्स लेके पढ़ रहा है उसका भी उतना ही हक है। ठीक है, वो उतना ही साइंस से जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि जो इंसान फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा है या आर्ट्स या फिर कोई दूसरा चीज या पढ़ाई नहीं कर रहा है वो साइंस से बिलोंग नहीं करता है। बिल्कुल नहीं। साइंस इज अ लाइफ एंड एवरी डे from morning till night we are the part of science. Every day whatever the works we are doing is a part of a science. Whatever the actions we are doing, that is science. Whatever the reactions we are getting, that is also science. Okay, ये ऑरवेल ने प्रूफ किया है इस डेफिनेशंस के माध्यम से। और उसने जो मिस्टर जे स्टीवर्ट कुक की
जो डेफिनेशन है उसको गलत बताया है। यही है सब्जेक्ट। समझ में आया व्हाट इज साइंस? Is it clear to you, students? This is a little bit Yes, sir. complicated. That's why I'm asking you if you have any doubt. So far I have completed. If you feel any doubt, then you can ask me. कोई डाउट नहीं है? Any doubt? No, sir. ठीक है। Yes, someone is talking. कुछ बोलना है? No, sir. ठीक है, कोई बात नहीं। I am going to the next. I am going to the next chapter. That is the 3 question by C. Rajgopal. The questions related to So this your voice is not audible. subject is related to, or this topic is related to महाभारत। महाभारत के टॉपिक्स का ये चैप्टर है। ठीक है, महाभारत में एक पार्ट है जहां पर मैं थोड़ा सा हिंदी में आप लोगों को इसको बता देता हूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो जाए। महाभारत में एक मतलब क्या है, एक एक सिनेरियो है। मतलब महाभारत में एक एपिसोड है जहां पर आप अगर महाभारत देखे होंगे टीवी में बी आर चोपड़ा के, तो उसमें ये एपिसोड है जहां पर जब पांडव को वनवास में भेजा गया था बाय कौरवास, तो 12 साल के लिए और 1 साल के लिए अज्ञातवास के लिए भेजा गया था। टोटल 13 years दे नीड टू रिमेन इन द exile. They been exiled फ्रॉम हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से उन्हें एग्जाइल कर दिया था और विवश कर दिया था कि वो 12 साल वनवास में रहे और 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास मतलब छुप के रहना। अगर उस छुप के रहने के दौरान में कोई ना कोई उसे वो अगर पकड़ा जाते हैं तो फिर दोबारा 12 साल और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिलने वाला है। तो ड्यूरिंग ये स्टोरी उसी से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, जब 12 साल की वनवास उसे मिल जाता है तो एक दिन they were roaming here and there in the forest. Suddenly मदर कुंती, जो पांडवस की मां थी, मदर कुंती, she was feeling very thirsty. She felt very thirsty. She ordered Nakul, Sahadev, someone else, that please go and have some water from near pond. तो नकुल सबसे छोटा था। पांडव का 5 भाई था, आप लोगों को मालूम है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। दीज आर द 5 ब्रदर्स ऑफ पांडवस। इसके लिए पंच पांडव कहा जाता है। तो सहदेव और नकुल से कहते हैं प्लीज गो टू नियर बाई पॉन्ड एंड सर्च और फेच सम वाटर फ्रॉम देयर। माता कुंती ऑर्डर्ड। तो सडनली बोथ ऑफ द ब्रदर्स नकुल एंड सहदेव दे गो। What Sahadev used to do, Sahadev told his brother Nakul that Nakul, you go there. I am just climbing the top of the tree and find out whether there is some water available in this place or not. Nakul climbed the tree and he find that some cranes मतलब बक जो होता है, एक टांग में खड़ा मतलब हंस होता है, some cranes, swans are floating here and there. तो he suddenly ordered Nakul that Nakul, please go there, you will going to find the water, because वहां पर जहां पर हंस बगुला रहता है वहां डेफिनेटली पानी है। तो नकुल वहां पर जाता है और जैसा ही पानी भरने के लिए जाता है तो तुरंत दूसरे जगह से आवाज आते हैं कि नकुल, पानी पीने से पहले मुझे 3 सवाल का जवाब देना चाहिए। आई वॉन्ट टू आस्क यू 3 questions and on the basis of that if you prove if you give the correct answer of this 3 question which I am asking, then you can take the water. नकुल ने उस बात को सुना नहीं जो किसी ने भविष्यवाणी करके बताया कि पानी पीने से पहले मुझे 3 सवाल का जवाब दो। अगर बिना सवाल किए आपने पानी पी लेते हो तो आप मर जाओगे। तो नकुल ने सुना नहीं। नकुल ने तुरंत पानी पिया और तुरंत वहीं पर मर गया। जैसे ही ये देखा बहुत देर हो गया तो सहदेव वहां पर आया। अपना भाई की वो हालत देख के वो भी सेम वही काम किया। उसे सेम ऑर्डर मिला कि सहदेव, जैसे तुम्हारा भाई का हालत हुआ तुम्हारा भी होगा। कृपया करके with the earnest request I'm telling you, please answer the 3 questions, and if you give right of the 3 questions that I am going to ask, then you are allowed to have the water. लेकिन सहदेव ने भी वही काम किया जिसने नकुल ने किया।
उसने बिना परमिशन के पानी पी लिया और मर गया। अब यहाँ पर तीनों भाई वरीड हो गया कि इस नकुल और सहदेव को क्या हुआ, तो तुरंत अर्जुन को भेजा। अर्जुन वहां पर जाके देखा और सेम वही काम किया, तो अर्जुन भी मर गया। भीम गया, भीम भी एक्सपायर हो गया। अब बचा युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर वहां पर गया और युधिष्ठिर ने उस बात को सुना और सुन के बोला, यस आई एम रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस दैट यू विल गोइंग टू आस्क मी। ठीक है, और यही स्टोरी है। राजगोपालाचारी ने 3 क्वेश्चंस नाम दिया है। ठीक है, ये 3 सवाल क्या था, मैं एक सवाल का जवाब आपसे देता हूं। पृथ्वी से भारी क्या है, काजल से काली कौन है, और आकाश से भारी क्या है। ठीक है, और पृथ्वी में सबसे आश्चर्य चीज क्या है, सबसे मतलब क्या आश्चर्य एकदम सडन चीज क्या है जो जानते हुए भी हम अनजान रहते हैं, ये सवाल किया गया था। तो मैं इसका जवाब आपसे दे देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। पृथ्वी से भारी माता होता है, क्योंकि जैसे पृथ्वी की ऋण हम चुका नहीं सकते, वैसे माता के ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। वी कैनॉट रिपेंड द लोन ऑफ आवर मदर सैक्रिफाइसेस। कभी कर सकते हैं, उन्होंने जन्म दिया, इस पृथ्वी पे लाया, उसने हमें बड़ा किया पाल पोस के, तो उसका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। सेम वाइज पृथ्वी के ऋण भी हम चुका नहीं सकते। ये एक सवाल का जवाब सही दिया। दूसरा सवाल गया, काजल से काला कौन है। काजल से काला होता है कलंक। जैसे काजल किसी जगह पर अगर आप लगा दो, आंख में लगा दो, तो काली पड़ जाती है, वैसे ही कलंक अगर किसी के जीवन में लग जाता है, तो आप कोई भी साबुन, डिटर्जेंट पाउडर किसी से भी धो लो, वो जिंदगी में कभी मिटेगा नहीं, एक बार अगर कलंक लग जाता है। दैट इज वाई इन इंग्लिश देयर इज अ प्रोवर्ब दैट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ओके, और तीसरा सवाल ये था कि आकाश से भारी क्या होता है। आकाश से भारी होता है पिताजी, पिता। पिता, माँ तो हमें 9 साल गर्भ में रखता है, लेकिन पिताजी 19 साल 21 साल तक हमें ढोता है। जैसे आप लोग हो, अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो मैक्सिमम जो होते हैं अपने बलबूते पे तो नहीं पढ़ रहे हो, पिताजी पैसा दे रहा है, आप लोग उसी पैसे के फीस भर रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो। इसलिए जो कर्ज के भारी कौन होता है, पिताजी कर्ज के भारी होते हैं। और लास्ट युधिष्ठिर से एक सवाल किया था, मैं क्या सवाल किया था कि युधिष्ठिर टेल मी, आप किसे जिंदा देखना चाहते हो। ये युधिष्ठिर को परीक्षा थी। ठीक है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप सब मेरे भाई को मार दीजिए, लेकिन मेरी छोटी माँ जो माद्री थी, उसका बेटा का नाम था नकुल, आप उसे जीवन दे दीजिए, क्योंकि हम तो कुंती के लिए मैं एक बेटा काफी हूँ, लेकिन मेरी माता जो माद्री है, उसका सिर्फ एक ही बेटा है, और अगर वो मर गई तो उसका बेसहारा हो जाएगी। इसलिए आप मेरे सब भाई को मार लीजिए, जीवन मत दीजिए, लेकिन मतलब नकुल को जीवन दान दीजिए। और ये सुन के जो अदृश्य जो इंसान था, उसने तुरंत सामने आया और उसने कहा, युधिष्ठिर मैं आपके सवाल का आपका जवाब से आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। आई एम धर्मराज, मैं धर्मराज हूँ, और मैं आपको परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और आप परीक्षा में पास हो गए, और लीजिए मैं आपके सभी भाइयों को प्राण छोड़ दे देता हूँ, और बाद में सभी भाई जो है वो जीवन पा जाता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द 3 क्वेश्चंस that is taken from the extract of episode of Mahabharata written by Rajgopalachari. Yes, tell me, कोई डाउट है? No, any doubt? Any questions? Anybody? No, sir. Okay, the story is clear to you? Yes, sir. चलिए ठीक है। Okay, thank you. You all students are very intelligent. There is no doubt that you are asking me. Very good. Okay, the next one is a short extract from the naked ape. Ape का मतलब होता है बंदर, एक प्रजाति होता है बंदर का, एक प्रजाति होता है एप। ओके, बाय डेस्मोंड मॉरिस, रिटन बाय डेस्मोंड मॉरिस। क्या लिखा है,
A geologist study of human animals says that of 193 species of monkey and apes, all but one is covered with hair. He defined Homo sapiens, a self-named ape, as an exception. Okay, in the 7th chapter of that following, Morris studies human from geological perspective, focusing on the origins, behavior, rearing, exploration, fighting, feeding and comfort. ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी जो डेस्मोंड मॉरिस ने लिखा है, इसने हम इंसान को 193 जो स्पीसीज होते हैं, जीव जंतु होते हैं 193, उसके साथ कंपेयर किया गया था। उसने कंपेयर क्या किया, क्या हम इंसान जो 193 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मंकी, बंदर होते हैं, हम उनसे क्या भिन्न होते हैं? हमारा उत्पत्ति जो है, हमारा जो बर्थ है, क्या वो मंकी से आया है? हमारा फोरफादर्स क्या मंकी थे, एप थे? दीज ऑल आर द क्वेश्चंस दैट आस्क्ड बाय डेस्मोंड मॉरिस। ओके, ये सारा कुछ जो है डेस्मोंड मॉरिस ने एक थ्योरी की तरह प्रेजेंट किया है। कह रहा है कि देखो, आप अगर किसी बंदर को देखो, उसका बिहेवियर को देखो, तो बहुत हद तक क्या है कि हम इंसानों के साथ वो मिलता जुलता है। दे हैव अ फीलिंग्स, दे आर ऑल्सो हैविंग द टेस्ट। आप अगर कुछ दूसरा कुछ खाने के लिए दे दो, वो फेंक देता है। दे आर ऑल्सो हैविंग द टेस्ट, they are also having the desire, they are also having the explorations, they are also having the fighting skill, वो भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। and they are also having comfort, भूख लगता है उसे, फीडिंग लगता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत बड़ा है। डेस्मोंड मॉरिस ने किया है, क्या हम इंसान क्या बंदर से रिलेटेड करते हैं? ओके, नाउ the final chapter explores human as they relate to the other animals. From a geological perspective, Morris rejects the idea of homocentric universe. He contends that human biological nature has shaped their social structure and not the reverse. He urged that human reproductive cycle has the potential to overpopulate the world, and therefore those opposing birth control are engaged in dangerous warmongering. Finally, he cautions the people that humans may destroy themselves if they do not control population and aggressions, and resulting environmental damage both to other species of the earth. The Naked Ape view that the behavior of human was determined largely by their biological and human share many characteristics with animals, particularly ape, was offensive to many readers and enlightens to others. यहाँ पर राइटर ने हम इंसानों को बंदर के साथ तुलना किया है, और तुलना करने के बाद ये बताया कि बंदर में एक बर्थ कंट्रोल का राइट होता है, लेकिन हम इंसान अपना डिजायर में इतना खो जाते हैं कि हमें पता नहीं है कि हम अपना डिजायर को छुपाने के लिए कितना कुछ बलिदान कर देते हैं, कितना कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कहा जाता है कि अगर इस पृथ्वी में सबसे डिस्ट्रक्टिव कोई एनिमल है तो वो इंसान ही है। Because at the end of the era, you will going to find that these human beings will going to destroy the nature, it will going to destroy the earth, not by the animals. कहा जाता है एनिमल्स इस मतलब दुनिया में एनिमल्स सबसे डिस्ट्रक्टिबल प्लांट, मतलब सबसे डिस्ट्रक्टिबल जानवर है, लेकिन बट नो, human beings, according to Desmond Morris, human beings are one of the dangerous creature available in this earth. क्योंकि humans के पास ब्रेन है, कैपेसिटी है, पावर ऑफ थिंकिंग है, जिसकी वजह से वो इस धरती को विनाश कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए डेस्मोंड मॉरिस ने बंदर को डेंजरस नहीं कहा गया है। 193 स्पीसीज जो है, 193 प्रजाति जो है, उसको डेंजरस नहीं कहा गया है, लेकिन इंसान को डेंजरस बताया गया है कि इंसान एकमात्र ऐसा जानवर है जो इस पूरी पृथ्वी को विध्वंस कर सकता है। ये कहानी जो है, ये जो पैराग्राफ है, ये जो स्टोरी है, ये इसी पे बेस्ड है। ठीक है, ऑल्दो Christians, fundamental, and other group of object to the books, many young people found in its pages jurisdiction of the sexual revolutions. इंसान कैसे है? इंसान धर्म के लिए युद्ध करता है, जाति के लिए युद्ध करता है,
रोटी, कपड़ा, मकान, घर, जमीन, जायदाद, जोड़ू, सबके लिए झगड़ा, लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन 193 जो जानवर है इंसानों के अलावा, वो कभी इस तरह का कामकाज नहीं करता है। तो क्या हम और जानवर सिमिलर है? क्या हमें जानवर के साथ कंपेयर किया जाता है? डेस्डिमोनिड मोरिस ने लास्ट में एक सवाल किया है और उस सवाल का जवाब उसने दिया है कि नहीं, हम जानवर नहीं है, लेकिन हम जानवर से भी बदतर इंसान है। ठीक है, हम जानवर से भी बदतर है। यार जानवर तो कभी ना कभी उस जगह को, उस प्लेस को, उस सिचुएशंस को छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन हम इंसान जो है उसी के पीछे पागल जैसे बने रहते हैं। चाहे वो सेक्सुअल प्लेजर हो, चाहे वो डिजायर हो, चाहे वो फूड हो, क्लोथ्स हो, सब कुछ हो, हम किसी को मारने तक के पीछे नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, डेस्टिमोरेंस ने इसीलिए इंसान को सबसे डेंजरस बताया गया है। ठीक है, एम आई क्लियर? ये शॉर्ट एक्सट्रैक्ट यस है। सर। आप लोग को इसका नोट्स शायद मैम से मिल जाएगा, आप लोग पूछिएगा। इस सब का समरी मैंने दे दिया है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बट बहुत, मतलब थोड़ा सा, कैसे बोलूं आपको, पढ़ के जब आप आंसर करोगे ना तो थोड़ा सा ध्यान से आपको आंसर करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चंस थोड़ा सा राउंड अबाउट क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, द नेक्स्ट, द लास्ट वन इज द रूल्स ऑफ द रोड। The Rules of the Road, written by A.G. Gardiner. Mr. A.G. Gardiner ने रूल्स ऑफ द ऑन द रूल ऑफ द रोड के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस समझाया है। In order to understand what Gardiner means when he says that liberty का मतलब होता है freedom, involve a social contract and not just personal liberty. Think about what he says later in the essay. Later in the essay, he says, there are a lot of people in the world, and I have to accommodate my liberty to their liberties. A fat old lady was walking on her basket down the middle of the street in Pentagrot, to great confusions of the traffic, with a small threat to herself. It was pointed out her that the pavement was the place for the foot passengers, but she replies, I am going to walk where I like. We have got liberty now. तो रूल्स ऑफ द रोड में ये बताया, लिबर्टी, अगर इंसान को फ्रीडम दे दिया जाए, ये कहानी उसी पे बेस्ड है कि हम अगर इंसान को फ्रीडम दे देते हैं तो इंसान क्या कर सकता है। अगर कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहता है, लॉज नहीं रहता है, पुलिस नहीं रहता है, तो इंसान फिर खुले सांड जैसा होगा, हर कुछ लूट के बर्बाद करके ले जाएगा। इसीलिए पुलिस को कंट्रोल कर, इसीलिए इंसान का लिबर्टी, फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए ये लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, पुलिस, कस्टडी, जेल, टॉर्चर, पनिशमेंट, ये सब रखा गया है ताकि इंसान इसमें से डरे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल। एक फैट वुमन पेंटागन मतलब अमेरिका में वॉक कर रहा है। वॉकिंग करते करते ट्रैफिक पुलिस सिग्नल दे रहा है, लेकिन उसने जो जहां पर पेडिस्ट्रियंस जो वॉक करते हैं, एक वॉक करने का जगह होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग करेगा, उस जगह नहीं होके वो बीचों बीच रोड से चल रहा है, वो बीचों बीच रोड से चल रहा है। तब पुलिस ने पूछा, मैडम आप रोड के बीच से क्यों चल रहे हो, आप साइड से जाइए, आपको फुटपाथ बनाया गया है, फुटपाथ से चलिए, आप अगर बीच से जाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उस फैट लेडी ने क्या क्या, उस फैट लेडी ने कहा कि वी हैव द लिबर्टी टू वॉक एनीवेयर इन द प्लेस। ओके, अगर इंसान इस तरह का जवाब देगा किसी को भी तो सिचुएशन कैसा होगा। एक और एग्जांपल मैं आप अच्छी देता हूं। आप लोग डिमना रोड तो देखे ही होंगे, जमशेदपुर में डिमना रोड कितना बिजी रहता है, शाम सुबह दिन रात। अगर डिमना रोड में ट्रैफिक पुलिस कभी हट जाता है, ठीक है, कभी ये चीज गौर से देखिएगा, अगर डिमना रोड, जो डिमना रोड, जो वो जो ब्रिज के ऊपर से जो गाड़ी पास होता है, वहां अगर पुलिस हट जाए, वो 3 मोड़ जो खुल जाता है जहां ट्रैफिक पुलिस अगर नहीं रहता है, तो सिचुएशन कैसा रहेगा। एक दूसरे को मार के इंसान आगे बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, रूथलेस ड्राइविंग करेगा। लेकिन इंसान एक पल के लिए भी नहीं सोचेगा कि मैं अगर जबरदस्ती जोर से किसी को चोट पहुंचा के आगे बढ़ रहा हूं
तो उस हालत कैसा होगा। यही बताया गया है राइटर ने, AC गार्डिनर ने बताया कि इंसान को लिबर्टी उतना ही देना चाहिए जितना उसका हक है। अगर ज्यादा से ज्यादा आप लिबर्टी दोगे या फ्रीडम दोगे तो इंसान सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, ये चैप्टर इसी पे बेस्ड है। देखो लिखा है फाइनली, वी हैव टू एग्री। देखो लास्ट पैराग्राफ देखो, ब्यूटीफुल लिखा है, by the what right dear sir do you have, nahi, I find myself wondering what sort of person, what sort of person is who sit behind a long hawk like a courage without realizing that he is the simply thinking that liberty means that we can do whatever we want. Instead we have to make a social contract with other people. Okay, when we do that, we will give up some of our liberties so that everyone can live together in harmony. It is in a small matter of conduct, in adherence to the rule of the road, that we pass judgment upon ourselves and declare that we are civilized or uncivilized. The great moment of heroism and sacrifice are rare. It is a little habit of commonplace interactions that make up the great life of life, सम ऑफ लाइफ एंड स्वीटन और मेक बिटर द जर्नी। देखो लास्ट पैराग्राफ जो है ब्यूटीफुल ने एयर गार्डिनर ने लिखा है कि लिबर्टी उसे कहते हैं जहां पर लिबर्टी एक दूसरे को सहायता बनाते हैं। मैं थोड़ा सा फ्रीडम देके अगर आगे बढ़ जाता हूँ रोड में, तो पीछे जो गाड़ी खड़ा है वो थोड़ा सा आगे बढ़ के वो निकल सकता है। मैं अगर फ्रीडम लिबर्टी थोड़ा सा ज्यादा लेके रास्ते के कॉर्नर में आ जाता हूं तो पीछे वाला जो ट्रक है वो आगे निकल सकता है। इसी तरह हार्मोनी रिलेशनशिप क्रिएट होता है, इसी तरह सोशलाइजिंग क्रिएट होता है, और इसे लिबर्टी कहते हैं। दिस इज द लिबर्टी इज ऑल अबाउट। लिबर्टी का ये मतलब नहीं किसी को जान से मार के आगे बढ़ जाओ। लिबर्टी का ये मतलब नहीं है कि किसी को जैसा का तैसा करके चले जाओ। नहीं, लिबर्टी का मतलब है एक दूसरे को हेल्प करना, सोसाइटी को हार्मोनाइज करना, इक्वल वे में देखना। ठीक है, आप अगर परेशानी में हो तो अगला भी परेशान होगा डेफिनेटली आपकी कुछ हरकत की वजह से। इसे कहते हैं लिबर्टी। तो हमें क्या करना चाहिए? टू रिमेन हार्मोनाइज, टू रिमेन सोशली बैलेंस इन द सोसाइटी, वी शुड हैव some liberty in ourselves to help others. Okay, am I clear? Yes, sir. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर खत्म होता है आप लोगों का टोटल 8 to 9 जो चैप्टर्स है वो खत्म होता है। कोई डाउट है प्लीज आप लोग पूछ लीजिए, बिकॉज शायद ये आप लोगों का लास्ट क्लास है। मैंने क्लास पहले लिया था, यू ऑल आर एब्सेंट, यू आर नॉट। अभी आप लोगों का एग्जाम आ गया तो दोबारा ये एक सेशन मुझे लेना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई स्टिल आई एम आस्किंग, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी। और ये जो नोट्स मैंने भेजा है मैम को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल गया है। प्लीज आप लोग मैम से रिक्वेस्ट करके ये नोट्स ले लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड दिया है नोट्स, that all will going to come in the examinations, that all will going to help you to write the examination paper very clearly, and I am 100% sure that definitely you will going to get a good marks. Okay, यहाँ informal writing, formal letter, informal letter किसे कहते हैं मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। लिखने का तरीका मैंने बता दिया है, देख लीजिएगा, बहुत सुंदर तरीके से मैंने बताया एग्जाम। ठीक है, और कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं है ना? No, sir. ओके चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू। ओके चलिए, Thank you. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, Thank थैंक you, यू, sir. हैव अ Thank you. गुड डे।